Hello friends, my name is Shamli Tiwari and I am welcoming you to in my new video. In this video, as we have already seen about the pressure 1, now in this series we will start about the pressure 2. What we are going to see in the pressure 2? Let us discuss. First, our today's goal is atmospheric pressure and its altitude. Also, we will discuss about some real life example which will be really very helpful for you. Okay, so let us start with the first one, that is atmospheric pressure. Before starting, I am having some questions on this. You have to answer one question only. I will only give answer, don't worry, but just think about this. Okay, first one is, have you ever wondered why your ears pop up on airlines or driving up the mountains and the steep inclines? Can you answer? Have you experienced this? Yes, everyone has experienced this. Let us see the answer. The answer is, as altitude changes, the air pressure outside our body differs from the pressure inside the middle ear. Right? Whatever middle ear is having the pressure, that will get changed automatically. That's why we will feel our ear pop up as they adjust to equalize the pressure between outside the environment and inside your ear. Okay, I hope you understood. And really very important question, as concerning to our health, we should know this. Okay, so next time if anyone will ask you, you can answer their question. This is also one of the type of physics only. Yes, so let us see the next one. Yes, today we will discuss about how what is mean by first of all atmospheric pressure, how altitude affects the air pressure, and also we will see some real world phenomenon which are we are using for this in our day to day life. Okay, did you know Mount Everest climbers need oxygen tanks because of low atmospheric pressure at high altitudes? Yes, yes. So now, what is meant by atmospheric pressure? First of all, atmospheric pressure is nothing but what? The air extends up to any kilometers, right? Whatever air is going up, we know that already. The air, whatever surrounding us, is nothing but what? Atmosphere. We are calling it as atmosphere. Envelope of the air is called as atmosphere. Now we are talking about the atmospheric pressure. As we have yesterday only we have discussed what is mean by pressure. Pressure matlab force per unit area. As the pressure is nothing but what? Force per unit area. So here also something force is acting, है ना. तो एटमॉस्फेयर में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स. सो हियर वॉट एवर वी आर टॉकिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज क्रिएटेड ड्यू टू द force of gravity. So the atmospheric pressure is the force of gravity on the air in the column of that particular unit area is called as what? Atmospheric pressure. Now let us see what we have written here. It is the weight of the air molecule pressing down over the earth's surface, right? Even though air feels light, there is actually a lot of atmosphere in it, right? Lots of pressure we are creating it because gravitational force is present there, so that the air pushes down us and creating the pressure. As we know, pressure is equals to force per unit area, right? Now atmospheric pressure at the sea level is this much, 100,000 Newton per meter square, or we can call 100 kilo Pascal. As yesterday only we have discussed, force measured in terms of Newton, area measured in terms of meter square, so its unit is Newton per meter square, or this only we are calling it nothing but what? Pascal. So it is 100 kilopascal. Okay, now let us see the next one. What causes the atmospheric pressure? Why atmospheric pressure is getting, we are experiencing the atmospheric pressure? Because already, as I explained now itself, that pressure is nothing but what? Force per unit area, and on earth's surface also particular force is working. That force is nothing but what? Acceleration due to gravity, right? Force is nothing but what? Gravitational force. So earth's gravity pulls on the gas molecules on the air. This creates the atmospheric pressure.
right? The air near the earth's surface is compressed by all the weight of the air molecules above it, है ना. सपोज अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कंसिडर कर रही हूँ एक एयर कॉलम. फॉर एग्जांपल एक ग्लास का मैंने सिलेंडर कंसिडर किया. सिंपली वन consider the one glass cylinder. So here whatever air molecules are present inside this glass cylinder is nothing but what, कुछ ना कुछ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है ना. दैट फोर्स versus this unit area, just like here how I have taken it into the three parts. So weight of the air, that is force acting per unit area, is nothing but what, atmospheric pressure, and this is how the atmospheric pressure is causing. Okay, so let us see the next one point. Yes, again see here, small questions I have added so that you will understand it more easily. Okay, here one question I am asking, at the value of 101,000 Pascal at sea level, why don't our bodies get crushed by the atmospheric pressure? Because हमारे बॉडी का तो इतना प्रेशर नहीं होता है. फिर ये होना चाहिए था कि यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर है तो हमारी बॉडी क्या हो जाना चाहिए थी, उसके अंदर क्रश हो जाना चाहिए थी. जैसे अगर हम लोगों ने एक बॉटल में पानी लिया और उसके अंदर से गर्म वाफ मतलब वो गर्म पानी निकाल दिया और फिर उसका ढक्कन बंद कर दिया, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा इनसाइड और वो बॉटल क्या हो जाएगी, क्रश हो जाएगी, है ना. उसका शेप कैसा हो जाएगा, अगर आपने देखा होगा तो ऐसे ऐसे क्रश हो जाएगा, है ना. तो ये क्रश हो रहे तो हमारी बॉडी भी ऐसे ही क्रश होना चाहिए था, तो वो क्यों नहीं हो रहा है, इसका भी रीज़न हम लोग देखेंगे. ठीक है, उसके पहले एक और इमेजिन करने वाली बात ये है या फिर सोचने वाली बात ये है, हम लोग कह सकते हैं कि द चैलेंजेस डीप इन द मरीना ट्रंक. ओके, मरीना ट्रंक क्या है, डीपेस्ट पॉइंट है हमारे अर्थ ओशन का, और एक्सपीरियंसेस 110 this much 1000 kilopascal. Okay, accounts for the combined atmospheric and the water pressure. Then why our bodies are not getting crushed in that much atmospheric pressure also? This is the question. So let us see the next one. Just little bit imagine and move towards our next slide so that we can give you the answer. The answer is the air inside us also exerts, हमारे बॉडी के अंदर जो एयर प्रेशर होता है, एयर होता है, वो भी क्या करती है, प्रेशर क्रिएट करती है. अल्सो एक्सर्ट्स एन आउटवर्ड प्रेशर बैलेंसिंग आउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है. अगर वो वाला प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता, वो वाली एयर अगर हमारे बॉडी के अंदर से एक्सर्ट नहीं होती, तो हमारी बॉडी क्या हो जाती, क्रश हो जाती. बट एक्चुअली में ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है. इसका मतलब क्या है, हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ क्या है, प्रेशर है जो बैलेंस कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, है ना. आवर बॉडीज आर एडॉप्टेड टू द स्टैंडर्ड प्रेशर ऑफ आवर इन्वायरमेंट, अलाउइंग अस टू विथस्टैंड द वेट ऑफ द एयर above us without any harm. I hope you understood. Now let us see that Marina Trench example. What is the reason कि वहाँ पे इतना सारा प्रेशर होने के बाद भी बॉडी क्रश क्यों नहीं हो जाती? द आंसर इज द चैलेंजर डीप इन द मरीना टेक, द डीपेस्ट नोन पॉइंट इन द अर्थ्स ओशन, एक्सपीरियंसेस द प्रेशर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, इतना सारा प्रेशर है ना, 110,000 किलो पास्कल, इतना प्रेशर. दिस अकाउंट्स फॉर द कंबाइंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ, एटमॉस्फेरिक और वाटर प्रेशर दोनों का भी प्रेशर होता है. इसीलिए हमारे बॉडी को कोई हार्म होता है क्या, नहीं होता. इवन वाटर में भी कुछ नहीं होता. ओके, नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाउ वी कैन मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इन यस्टरडे स्लाइड ऑल्सो आई हैव शोन यू 2-3 examples of measuring the pressure, right? 2-3 devices that can measure the pressure. Even one different examples I have given. In one picture I have shown you, one is manometer, one other one is barometer, like that. So here they are saying that the atmospheric pressure can be measured with the help of barometer. किसके मदद से गिन सकते हैं, बैरोमीटर के हेल्प से गिन सकते हैं. तो अब ये बैरोमीटर क्या होता है, let us see. The barometer is a scientific instrument used to measure the atmospheric pressure, typically into millibars. किस में गिनते हैं हम लोग, मिलीबार में गिनते हैं. The standard pressure reading 1000 millibar, reading above this indicate high pressure. अगर 1000
मिली बार के ऊपर का अगर प्रेशर है तो वो क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर में कंसिडर होगा, और उसके अगर नीचे का प्रेशर है तो किस में कंसिडर होगा, लो प्रेशर में कंसिडर होगा, है ना। ये ऐसे दिखता है बैरोमीटर्स, अलग अलग साइज के शेप के बैरोमीटर होते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस हम लोगों को कौन सा यूज़ करना है उसके ऊपर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट द इंस्ट्रूमेंट यूज विच इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज व्हाट, बैरोमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, वो है हमारा प्रेशर और अल्टीट्यूड का जो ये है रिलेशन है वो क्या होता है। अब यहाँ पे फिर से मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, इसका जवाब हम लोगों को सोच के फिर बताना है, ठीक है। व्हाट डज द ग्राफ शो, यहाँ पे मैंने ग्राफ बना के बताया हुआ है, और ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ दिया हुआ है अल्टीट्यूड मतलब हाइट और एटमॉस्फेयर के बीच का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच का, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किस में गिन रहे हैं, मिलीबार्स में गिन रहे हैं, और अल्टीट्यूड किस में गिन रहे हैं हम लोग, किलोमीटर्स में गिन रहे हैं। तो the graph shows relationship between the atmospheric pressure and the altitude. What do you notice about the trend of the atmospheric pressure in the अल्टीट्यूड इंक्रीजेज, जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे यहाँ पे 100 किलोमीटर था, फिर 200, 300, 400, 500 किलोमीटर, इसमें क्या होता जा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है ना। यही हम लोगों को दिख रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आंसर भी मैंने यही लिखा है कि जैसे जैसे ग्राफ अल्टीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यही हम लोगों को ग्राफ में दिख रहा है ना। So the graph shows that altitude increases, atmospheric pressure decreases. Inversely proportional relation है किसके किसके बीच में, atmospheric pressure और altitude के बीच में, याद रखना है। दिस इज अवर सेकेंड पॉइंट। नाउ वी विल सी वाई डज प्रेशर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। ऐसा क्यों होता है कि जब हम प्रेशर मतलब अल्टीट्यूड जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं वैसा वैसा प्रेशर कम कम होता जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जैसे हम लोगों ने अभी अभी बताया था, पहले एग्जाम्पल में जब मैंने स्टार्ट किया था तभी भी बोला था, क्या बोला था, माउंट एवरेस्ट के ऊपर जब हम लोग जा रहे हैं तब हम लोगों को क्या लेकर जाना पड़ता है, ऑक्सीजन टैंक लेकर जाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि एयर रिड्यूस हो रही है, वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर जो है वही क्या है, कम है। इसलिए हाइयर अल्टीट्यूड के ऊपर जैसे जैसे एयर कम होते जाती है, उसके मॉलिक्यूल्स कम होते जाते हैं, तो प्रेशर भी कैसा होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है ना। इसीलिए हम लोगों को ऊपर जाने के बाद में किसकी ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले ऑक्सीजन टैंक्स की ज़रूरत पड़ती है, और यही हम लोगों ने क्या देखा था, रीज़न देखा था। आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ लेट अस रीड दिस वन सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट ईजिली। व्हाट इज दैट? फर्स्ट वन, एट हाइयर अल्टीट्यूड एयर बिकम्स लेस डेंस, है ना। डेंसिटी कैसी हो जाती है उसकी, कम हो जाती है। फ्यू हो जाते हैं उसके एयर मॉलिक्यूल्स इन ए गिवन वॉल्यूम मीन्स लोअर प्रेशर, और उसी की वजह से प्रेशर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे देखना है, ग्रेविटी इज वीकर फादर अवे फ्रॉम द अर्थ सेंटर, है ना। और ग्रेविटी का भी बड़ा रोल होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डेवलप हो रहा है ना। वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेविटी वीकर होते जा रही है। अगर ग्रेविटी वीकर होते जा रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, फोर्स भी वीक होता जा रहा है। एक बार अगर फोर्स वीक हो गया तो ऑलवेज मतलब ऑब्वियसली हम लोगों को पता है, सो दैट एट हाइयर अल्टीट्यूड मॉलिक्यूल कैन स्प्रेड आउट मोर, और वी कैन से बिकम्स थिनर कॉजिंग द डिक्रीज इन द प्रेशर, है ना। सो ग्रेविटी इज वीकर फर्दर अवे, दैट इज ऑल्सो द रीजन वेयर बिकॉज ऑफ प्रेशर विल गेट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द अल्टीट्यूड. Understood? Now the next one, real life examples we are going to see. First one is aviation, mountaineering. So here airplanes are pressurized to ensure enough oxygen for breathing and prevent the harmful effects of low pressure on the human body. Okay, climbers experiences lower pressure and lower oxygen levels at high altitudes. They typically ascend slowly to allow their bodies to adopt it. Okay, ये भी एक एग्जाम्पल किसका हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हो गया इन आवर डेली लाइफ. Atmospheric pressure also very useful in weather forecasting. How it will be useful in weather forecasting? In meteorologists rely on the atmospheric pressure to say the forecast weather. कैसे? हाई प्रेशर क्या सजेस्ट करता है, क्लियर कंडीशन, है ना. अगर प्रेशर हाई है तो हमारा ये कैसा रहेगा,
कंडीशंस कैसे रहेंगे, क्लियर रहेंगे। लो प्रेशर अगर है तो स्टॉर्मी वेदर आने की क्या रहती है, संभावनाएं रहती है। सो इंक्लूडिंग ह्यूरिकेन्स एंड द साइक्लॉन्स, ये भी उसमें क्या होता है, गिन सकते हैं हम लोग, मतलब ये भी उसमें का ही एक रीज़न है, बिकॉज ऑफ लो प्रेशर, है ना, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। वंस अगेन चेक दिस साइंटिस्ट सेन। ओके, ये एक बार बताने से पहले मैं आपके बुक में एक छोटी सी कहानी बताई हुई है, वो भी एक बार डिस्कस करना चाहती हूँ कि ऑटो वन ग्यूरिक एक जर्मन साइंटिस्ट था 17th सेंचुरी में। उसने क्या किया था, उसने इन्वेंट किया था एक दो हॉलो स्पीयर लिया था, हॉलो वेसल्स लिया था, और उसके अंदर के उसने क्या कर दिया था, एयर प्रेशर पूरा निकाल दिया था, और उन दोनों हेमिस्फीयर्स को उसने क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था। जैसे एक ऐसा हॉलो स्पीयर है, ठीक है, और एक ऐसा हॉलो स्पीयर है। इन दोनों के अंदर से एयर प्रेशर को निकालने के बाद में इन दोनों को क्या कर दिया, उसने ज्वाइन कर दिया। और फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसके जो एम्प्लॉयज़ थे और बहुत सारे 8 हॉर्सेस ऑन बोथ द साइड्स, इधर से 8 हॉर्सेस, इधर से 8 हॉर्सेस, दोनों ही तरफ से उन्होंने क्या किया, खींचने को लगाया। 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 घोड़ों ने, मतलब 16 हॉर्सेस आर ट्राइंग टू पुल इट आउट, बट इट इज़ नॉट कमिंग। वाई? बिकॉज उसमें से जैसे ही एयर निकल गई थी, मतलब वो हॉलो हो गए थे स्पीयर्स, तो क्या हुआ था, द ग्रेट इज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट द हेमिस्फीयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट। वो बाहर खींचे जा रहे थे, क्या, क्योंकि उसके अंदर का एयर प्रेशर क्या हो गया था, लॉक्ड हो गया था, है ना। फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट इज हेमिस्फीयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट, उसकी वजह से वो क्या हो रहे थे, खींचे नहीं जा रहे थे। ये एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है आपकी एनसीईआरटी के बुक में, जो अच्छी लगी इसलिए आपके साथ में शेयर की। आप उसे एक बार एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ सकते हो। Okay, now let us see our point that scientists send research balloons at high altitude. Scientists क्या करते हैं, research balloons छोड़ते हैं at high altitudes to collect the atmospheric space and data. एटमॉस्फेरिक स्पेस डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो बिफोर फ्लाइट दिस बलून्स आर ओनली पार्शियली फिल्ड। पूरी हवा भरते हैं क्या वो लोग, उसमें नहीं भरते, हेलियम से भरते हैं, बट थोड़ी हवा भरते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पार्शियली फिल्ड होता है। ब्रीफली एक्सप्लेन वाई दिस इज़ द रीज़न, क्यों ऐसे क्यों करते हैं, कि हाफ ही क्यों भरते हैं। तो द आंसर इज एट हायर अल्टीट्यूड द एक्सटर्नल एयर प्रेशर लोअर देन द प्रेशर इनसाइड द बलून। जो हायर प्रेशर होते हैं उसके ऊपर क्या होगा, एयर प्रेशर कैसा होगा, ऑब्वियसली कम होगा जितना इनसाइड द बलून है, क्योंकि उसमें तो हम लोग हाफ भर दे के भर रहे हैं ना। एज द एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीजेस, जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज होगा, एक्सपांड फर्दर अंटिल द प्रेशर इनसाइड मैचेस द रिड्यूस प्रेशर आउटसाइड। दिस पोजेस द रिस्क ऑफ ब्रस्टिंग और एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ द मटेरियल। अगर मैंने फुल कर दिया, इसको फुल फिल करके फिर ऊपर भेजा, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पहले ही उसको हाफ फिल करके या पार्शियली फिल करके ऊपर छोड़ते हैं, ताकि वो ऊपर के जो प्रेशर है उसके बारे में हम लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सके, है ना। नाउ सी, this is one of the we can say activity that you have to do. Once read this activity and try to do it by your own, creating a makeshift of barometer. Try it by your own. I hope you understood the lesson. In this, let us recap in a small point that what things we have seen. Only 3 things we have discussed. First one is atmospheric pressure and its altitude. Also we have discussed about the real world example. Atmospheric pressure यानी क्या? It is the force exerted by the weight of the air in the atmosphere over the earth's surface. As altitude increases, atmospheric pressure will get decreases. और रिलेशनशिप हम लोगों ने देखा था अल्टीट्यूड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। उसके बाद में हम लोगों ने बताया था कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एविएशन में, माउंटेनिंग में और वेदर फोरकास्टिंग में, है ना। आई होप यू अंडरस्टूड. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.